morning, my dear student, and I am continuing a portion from your Unit 1, that is the magic of teamwork, and this is the second video of the topic, the magic of teamwork. In my last video we discussed about Unit 1 and Unit 2, and in this video we will discuss about the Unit 3 and Unit 4. So what is happening in Unit 3? Your narrator, or you can say the author, Sam Pitroda, is reflecting one of his experience when he was working in C. Company. In that C. Company, there were 400 employees under him, right? And what he used to do, he used to pinpoint the mistake of his employee openly in general meeting. So now people started criticizing Sam Pitroda for this activity. According to people, or according to the employee, Sam Pitroda should call that person separately, individually, and he should speak directly to that person about his mistake. Right? Let me say in Hindi once that जब सैम पिट्रोडा सी डॉट कंपनी में काम कर रहे थे, उनके अंडर टोटल 400 एम्प्लॉयज वेयर देयर. सो और उनका रूल था, सैम पिट्रोडा का रूल था कि कोई भी एम्प्लॉय का अगर मिस्टेक दिखता है तो वो जनरल मीटिंग में सबके सामने उसको पिन पॉइंट करके, उसको खड़ा करके उसका मिस्टेक को वो बोलता था. जिसके चलते क्या हुआ, सारे एम्प्लॉयज जो है स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग सैम पिट्रोडा. उनके हिसाब से सैम पिट्रोडा को सबके सामने किसी का मिस्टेक पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अकेले में बुला के उसका मिस्टेक को बोलना चाहिए. पर सैम पिट्रोडा डू इट पर्पसली, राइट? सैम पिट्रोडा जानबूझ के वो जनरल मीटिंग में सब एम्प्लॉय के सामने किसी को खड़ा करके मिस्टेक वो जानबूझकर बोलता था. व्हाई? बिकॉज others can know the mistake and they will learn from that particular mistake. Okay, Sam Pitroda, why he used to do this? Because he want that the mistake should be known to each and every employee and that mistake will not be repeated again. Okay, Sam Pitroda ये जानबूझ के करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि मिस्टेक को हर एक एम्प्लॉय जाने और वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो. बट पीपल किसको क्रिटिसाइज, किसको बुराई करते थे? सैम पिट्रोडा को ही बुराई करते थे. राइट? फर्दर मूविंग ऑन, सैम पिट्रोडा सेज दैट इंडियन पीपल डोंट नो टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन disliking of ideas. राइट? अकॉर्डिंग टू सैम पिट्रोडा, इंडियन पीपल लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग किसी का आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, मीन्स दैट पर्सन डू नॉट लाइक दैट पर्सन. समझ में आया? उसका मतलब क्या है? अगर हम लोग किसी का आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, नापसंद करते हैं, तो जनरल ह्यूमन बीइंग क्या सोचते हैं कि बॉस मेरा मुझे ही पसंद नहीं करते हैं, मुझे नहीं पसंद करते हैं, दैट्स वाई बॉस डोंट लाइक्स माय आइडिया. समझ में आया? अगर बॉस आइडिया को डिसलाइक कर रहा है, दैट डज नॉट मीन दैट बॉस इज नॉट लाइकिंग दैट पर्सन एज अ ह्यूमन. बट वी इंडियन पीपल जनरली थिंक दैट criticizing idea means criticizing a man. But Sam Pitroda is saying criticizing idea is another thing and criticizing a person is another thing. So according to Sam Pitroda, Indian people don't know this logic. They feel ideas get rejected, idea को अगर नापसंद किया जा रहा है means person को भी नापसंद किया जा रहा है, पर बल्कि वैसा नहीं है.
ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैम पिट्रोडा इट इज नॉट एट ऑल लाइक दिस. फर्दर मूविंग ऑन, we Indian people generally discriminate between the physical worker and mental worker, right? अब physical worker क्या है? Like the person who work physically, okay? Like you can say laborers, so they are the physical laborers, and mental labor means one who is working in office using their brain. So we Indian people fail to discriminate between the physical worker and mental worker. और हम इंडियन लोगों को लगता है कि फिजिकल वर्कर लोग नीचे पोस्ट में हैं और मेंटल वर्कर लोग हाई पोस्ट में हैं. Don't you think so? We also we Indian society has accepted this thing कि जो फिजिकल वर्कर है, जितने भी लेबर है, कूली है, मजदूर है, दे आर बिलोंग्स टू लो कैटेगरी. जो ऑफिस जाते हैं, जो बैंक में काम करते हैं, दे आर sophisticated, they are superior, but it is not like that. Okay, what happened in other countries? Why other countries is progressing? Because उन लोग फिजिकल वर्कर लोगों को भी सेम रेस्पेक्ट देते हैं as mental worker, right? They appreciate the physical worker as they appreciate the mental worker. समझ में आया? And Sam Pitroda is saying that his driver was a boy named Ram. ठीक है, राम नाम का एक ड्राइवर था सैम पिट्रोडा का. और ड्राइवर का क्या काम रहता है? जनरली he will pick the boss from the house, he will drop him to the office and he will wait, okay, inside the car reading newspaper, waiting for the boss, so that again his work is to drop him from the office to the house. Generally what we think, generally हम लोग क्या सोचते हैं, एक ड्राइवर का काम क्या है? बॉस को घर से पिक करेंगे और ऑफिस में ड्रॉप करेंगे, और जब वर्क प्लेस टाइम खत्म होता है, पिकिंग फ्रॉम वर्क प्लेस एंड ड्रॉपिंग बैक होम. बट सैम पिट्रोडा का वो थिंकिंग नहीं था. Why a physical worker will simply sit inside a car and read newspaper? उसको भी यूटिलाइज करना है, उसको भी काम में लगाना है. कभी किसी का फ़ोन कॉल अटेंड कर लिया, ठीक है, कभी कोई कोरियर इधर से उधर ड्रॉप कर दिया, मैसेजेस इधर से उधर ड्रॉप कर दिया. So according to Sam Pitroda, physical worker and mental worker both should be balanced in such a way that both will work in a same alignment. तभी जाके business क्या होगा? Success होगा. That is why we Indians are lagging behind, because we fail to discriminate between the mental worker and physical worker. Okay, so that is why your Sam Pitroda is saying that we should never discriminate any person on the basis of physical worker or mental worker. Now we are moving forward to unit 4, and what is happening in unit 4 is that your Sam Pitroda is saying that why we Indians are lagging behind and why other countries are moving forward, because we Indians fail to work in a diverse community. समझ में आया? We Indian fail to work in a diversifying team. Means देखो, India is a democratic country, right? जहाँ पे India is also a secular country where all the religion people, Hinduism, Buddhism, Muslims, Christianity, all community stay together peacefully. But when we form a group, right, when we form a team where different community and the people coming from different cultural background, and when you are asking them to do the work, they fail to do the work in team, because we fail to work in a diverse team. इसका मतलब क्या है? Sam Pitroda is saying we Indians, हम लोग भारत निवासी लोग में हर एक
रिलीजियन के लोग रहते हैं, राइट, पीसफुली। बट जब वही डिफरेंट रिलीजियन को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं किसी काम में करने के लिए, क्या होता है, वी एक दूसरे के बीच में भेदभाव आ जाता है। क्या को लेके? कास्ट को लेके, रिलीजियन को लेके, कलर को लेके, जिसके चलते क्या होता है, उन लोगों का टीम में पीस नहीं है, यूनिटी नहीं है, जिसके चलते क्या हो रहा है, काम ठीक से नहीं हो रहा है। सो सैम पिट्रोडा इज हाईलाइटिंग कि हम लोग इंडियन हैं एंड वी शुड मेंटेन दैट डाइवर्सिफाइंग एटीट्यूड इन आवर माइंड एंड हार्ट। हम लोग में किसी प्रकार का उच्च नीच का भाव नहीं रहना है, गोरा काला, रिलीजियन कॉन्सेप्ट, ये सबको अलग रख के काम करना है एक टीम में, अपना कंपनी के लिए, अपना देश के लिए। समझ में आया? वी हैव टू कीप असाइड ऑल द डिफरेंसेस based on religion, caste, creed, color. Then only the Indian people will what? Will move toward the path of success. So that is why Indians are lagging behind. Now what is happening? And when you are treating a team in a proper way, you are treating each and every person equally, what will happen? Whenever you give a, suppose I am a leader of a team, okay, and in my team there are various person from various background, cultural background, various religion people, caste, creed, and when I am treating each and every person equally, person, employees are seeing it, right? Your employees मतलब टीम ग्रुप में देख रहे हैं कि लीडर जो है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा है, रिलीजियन को लेके, कास्ट को लेके, तो हर एक के बीच में यूनिटी है। और एम्प्लॉय लोग भी, टीम मेंबर लोग भी लीडर से बहुत खुश है, और इतने खुश है कि अगर मैं लीडर रात के 3 बजे भी कॉल करके तुमको बुलाता हूँ कि आई नीड अ हेल्प, कम, श्योरली दैट पर्सन विल कम फॉर हेल्प। समझ में आया? बट इन दैट केस इफ इमेजिन, अगर लीडर ही डिस्क्रिमिनेट करता है और किसी को फोन करता है रात के 3 बजे, रात के 3 बजे क्या, दोपहर के 2 बजे भी बुलाने से कोई बंदा आएगा नहीं हेल्प आउट करने के लिए। सो सैम पिट्रोडा इज सेइंग इन वर्किंग प्लेस यू हैव टू कीप दैट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, रिलीजियन को अलग करना है, कास्ट अलग करना है, क्रीड को अलग करना है, कलर को अलग करना है, वो सब थिंकिंग दिमाग में लाना ही नहीं है। We are in a team, we are working for a team, be united, right? And further, what your narrator is saying that we Indian people need recognition. Recognition means हम लोग को हर एक को फेमस होना पसंद है, right? Everyone love to be praised. सबको पसंद है कि कोई किसी को तारीफ करे। सो सैम पिट्रोडा इज सेइंग, पहला चीज क्या है, डाइवर्सिफाइंग एटीट्यूड रखना है, कि हर एक के साथ मिल के काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट ही इज सेइंग कि वी शुड गिव प्रेज, हम लोग को प्रेज करना है, किसी को तारीफ करना है, ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको तुम अगर प्रेज करते हो, पैम्पर करते हो, मोटिवेट करते हो, एनकरेज करते हो, then you will see the difference कि जो बंदा काम अच्छे से नहीं कर रहा था, after your praising, motivating and encouraging, that person start doing the work in a correct manner. समझ में आया? अगर जो बंदे को काम अच्छे से नहीं आता है या नहीं कर पाता है, but if leader keep on encouraging, उसको बार बार मोटिवेट कर रहा है, keep on encouraging, motivating, recognizing, then that person will start giving 100%. So ये दो एक्टिविटीज़ है जो कि हम लोग को अपना वर्क प्लेस में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड लास्ट, now in the last unit, your Sam Pitroda in this essay is pointing out the fundamental issues related to teamwork. एक टीम वर्क में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले कोऑपरेशन एंड यूनिटी, राइट, टू डू वर्क इन यूनिटी, in teamwork and in cooperation.
अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, हर एक टीम के मेंबर को रेस्पेक्ट देना है, कोई भी एज का हो, राइट, कोई भी एज का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, ऑलवेज पे रेस्पेक्ट टू अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट, बी ओपन एंड ऑनेस्ट। समझ में आया? ओपन एंड ऑनेस्ट मीन्स द थिंग्स यू आर सेइंग यू विल फॉलो दैट थिंग ओनली, जो बोल रहे हो वही करोगे, ऐसा नहीं बोल कुछ और रहे हो, दिमाग में चल रहा है कुछ, कर रहे हो कुछ, वैसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, यू ऑलवेज कम्युनिकेट विथ योर टीम मेंबर, राइट। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी प्रकार का डिफरेंसेस आता है, प्रॉब्लम आता है, तो लीडर को क्या करना है, सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लास्ट वन इज रिकॉग्निशन, वी शुड प्रेज, वी शुड प्रेज, तारीफ करना है, एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, किसी को हाईलाइट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, जो अच्छा काम करता है उसको तारीफ दो, ठीक है, जो अच्छा काम नहीं करता उसको एनकरेज करो। सो दीज आर द फंडामेंटल इश्यूज फॉर टीम वर्क। ओके, दैट्स ऑल फॉर today's video, and the chapter the magic of teamwork is completed, and hope you have understood. Thank you.